Previous video I explained you the concept of Pythagorean triplets. मैंने आपको बताया था कि Pythagorean triplets जो हैं they represent the three sides of a right angle triangle where the smallest side is 2m, another side is m square minus 1, and the hypotenuse, that is the longest side, is m square plus 1. और ये प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई होगी where m stands for the natural number greater than 1. अब कुछ देते हैं इसमें एग्जांपल्स to find out the Pythagorean triplets. अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है find out the Pythagorean triplets where the smallest side is 8 centimeter. Where the smallest side is 8 centimeter. तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था this is the order in which the sides can be presented in the ascending order. This is the smallest, this is the medium and this is the longest side. तो इसका मतलब क्या हो गया? अब मुझे क्या दिया हुआ है? ये जो 8 सेंटीमीटर है this is the smallest side, which means 2m is equal to 8. यहाँ से आपका m आ जाएगा m is equal to 4. Yes, now my job is done. So what is the smallest side? 2 into 4, that is 8. अगली साइड आपकी क्या हो जाएगी? 4 square minus 1 and the longest side will be 4 square plus 1. 4 square minus 1 solve करेंगे, this is 15. 4 square plus 1 करेंगे, this is 17, which means I get the triplet 8, 15 and 17. एक बात आप और ध्यान रख सकते हैं. Now अब मैंने ट्रिपलेट निकाला 8, 15, 17. 8, 15, 17 ये भी ट्रिपलेट होगा और इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे even they will also represent the triplets. For example, अगर मैं इसका मल्टीपल देखता हूँ 8 2s are 16, 15 2s are 30 and 17 2s are 34. This is another triplet. तो एक बार अगर आपने कोई ट्रिपलेट फाइंड आउट कर लिया तो we can make infinite triplets from that particular combination. अब सपोज अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 3s are 24, 15 3s are 45 और 17 3s are 51. Yes, I get another triplet. So in this manner, from one triplet we can create as many triplets as we want. चलिए अब एक और क्वेश्चन देते हैं. इसमें आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये मेंशन किया हुआ है that in the Pythagorean triplet there is one member and one such member is 12. एक मेंबर आपको दिया हुआ है 12, लेकिन हमें ये नहीं पता ये जो 12 जो है ये स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट नंबर है और दिस नंबर शुड कम इन द मिडल. तो हम लोग क्या करते हैं, इफ I assume this to be the smallest number, which means 2m is equal to 12. यहाँ से आप m को सॉल्व कर सकते हैं. m is going to be equal to 6. Yes, the job is done. So what is the first number? First number will be 2 into 6, that is 12. अगला नंबर हम देखते हैं यहाँ पे, this will be 6 square minus 1. Next number will be 6 square plus 1. यहाँ से आपका नंबर निकल के आएगा 36 minus 1, 35 and another number is going to be 37. So now we have the triplet 12, 35 and 37. एक और क्वेश्चन लेते हैं. Let's take one more question. Let me write down the triplet first.
2m m square minus 1 m square plus 1. अब लेट अस अज्यूम कि इसमें आपको एक नंबर दिया हुआ है, क्या नाम है, 37. This is one of the member of the triplet, but it is nowhere given that whether it is a small number, middle number or the largest number. तो हम क्या करते हैं, I will first try with 2m. अब 2m is equal to 37. जब आप ये लिखेंगे तो m जो होगा वो किस में आएगा, that will come in decimal. It will be 37 divided by 2. और यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, that m should be the natural number, m should be the counting number, right? So obviously this is not the possibility. Now I will try to place m square minus 1 is equal to 37. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m square is equal to 37 plus 1 38. अगेन क्योंकि 38 जो है इट इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो m जो होगा इट वोंट बी अ नेचुरल नंबर, इट विल कम इन डेसिमल्स. तो ऑब्वियसली वी आर लेफ्ट विद द लास्ट कॉम्बिनेशन दैट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 37. अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो m स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 36, m is equal to 6. Yes. Now the conditions are satisfied. I got the number m. तो इसका मतलब जब भी आपको ट्रिपलेट फाइंड आउट करने हैं, आपको फाइंड आउट क्या करना होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा m. You to find out the values of m. अगर आपको दिया हुआ है कि जो गिवन नंबर है इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो फिर आपका काम बहुत ही आसान है, आप किससे उसको इक्वेट करेंगे, 2m से. अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो गिवन नंबर है इट इज द लार्जेस्ट नंबर और इट रिप्रेजेंट्स द लॉन्गेस्ट साइड, इसका मतलब आपने क्या करना है, उस नंबर को सीधे इक्वेट करना है m स्क्वायर प्लस 1 से. लेकिन अगर मान लो उस नंबर के बारे में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, दैट वेदर इट इज स्मॉल नंबर, मिडिल नंबर और द लार्जेस्ट नंबर, फिर आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया इस क्वेश्चन में, आई विल ट्राई टू वर्क आउट विद दिस दैट पर्टिकुलर नंबर विद ईच ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे फाइनली हम देखते हैं कि m मेरा किसके इक्वल आ गया, 6 के. नाउ द जॉब इज डन. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, m की जगह आपको 6 पुट करना है एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, यू कैन से द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. तो पहला नंबर आपका 12, ये आपका नंबर हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 35 एंड द नेक्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी 37. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट the Pythagorean triplets. अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपकी NCERT बुक में से, जिसमें आपको दिया हुआ है, write a Pythagorean triplet whose one number is 18. बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. एक क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. Find a Pythagorean triplet whose one member is 18. अब फिर से आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी ये मेंशन नहीं किया हुआ कि 18 जो है इट इज द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और मिडिल नंबर. तो यानी कि स्टोरी फिर से वही रहेगी इसमें कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं 2m इज इक्वल टू 18. m किसके इक्वल आ गया, m इज इक्वल टू 9. यस, अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लेता हूँ, सो 2m इज इक्वल टू 18 और यहाँ से m क्या हो गया, 9. 9 is a whole number greater than 1, तो yes, this condition is fulfilled. अगर मुझे तो अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, so my answer will be, the first number is going to be 18, second will be 9 square minus 1, that is 80, and the third number is going to be, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं m square plus 1 भी खुद से. yes, मैंने यहाँ पे ट्राई किया था 2m is equal to 18. नाउ अगर सपोज मैं इसको लेके चलता m square minus 1 is equal to 18, तो is it possible? Let's see. यहाँ पे m square किसके इक्वल आएगा, this is going to be equal to 19. We all know that 19 is not a perfect square. तो अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं m को सॉल्व करूँगा तो आपका आंसर किस में आएगा, डेसिमल में, जबकि m क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ नेचुरल नंबर. तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है. ऑल्दो दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बट स्टिल
हमने तीनों कॉम्बिनेशन ट्राई करना है टू बी 100% यू कैन से एश्योर्ड ऑफ द आंसर। तो मैंने फर्स्ट कॉम्बिनेशन ट्राई किया, वहाँ पे एम कितना आ रहा है 9। सेकेंड कॉम्बिनेशन देखा, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक बार थर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 18। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे एम स्क्वायर इज इक्वल टू 17। अगर यहाँ पे दोबारा अगर मैं एम को सॉल्व करूँगा अगेन, आई वोंट गेट द आंसर एज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे आंसर किस में आएगा, डेसिमल्स में आएगा। तो विच मीन्स दिस इज द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट 2m इज इक्वल टू 18। तो जब भी आपको सिर्फ एक नंबर दिया हुआ हो और आपको उसके बाकी कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, आपको उस नंबर को इक्वेट करना पड़ेगा विद ऑल द 3 गिवन कॉम्बिनेशन, दैट इज 2m से, m स्क्वायर माइनस 1 से और m स्क्वायर प्लस 1 से, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि विच इज द मोस्ट feasible combination, and that is going to be your particular triplet. So this is how you can find out you can say the Pythagorean triplet by using this particular concept. Thank you all.